हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिप्रेप। आज की वीडियो में हम करेंगे इग्नू के सॉल्व्ड असाइनमेंट फॉर द सब्जेक्ट BPSC 133। दिस इज द सब्जेक्ट कोड एंड द सब्जेक्ट इज कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसका आज हम इस असाइनमेंट का सॉल्व्ड आंसर्स डिस्कस करेंगे। This assignment is of 100 marks and it's divided into 3 sub assignments. और first assignment is of 20 marks जिसमें 2 questions हैं 20 marks each. Second वाले में 3 questions हैं, they are 10 marks each. Third वाले में 5 question हैं, they are 6 marks each. So now let's start with the assignment. So before starting off the video, please make sure that you recheck your subject code, that is BPSC 133. This is the latest assignment for July session 2024, which you have to submit in March, that is 31st of March 2025. So here is the first question. Briefly discuss the main trends in the study of comparative politics. And while writing your answers on A4 size sheet, make sure कि आप A4 साइज शीट की बोथ द साइड्स लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ड्रॉ करें ताकि आपका आंसर बीच में काफ़ी प्रिसाइज, प्रेजेंटेबल और स्ट्रक्चर्ड और फ्रेम लगे। एंड यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन वर्ड लिमिट्स। आपके जो क्वेश्चन पेपर है, असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है, उस पर लिखा हुआ है हर एक क्वेश्चन के बाद कि कितने वर्ड लिमिट में लिखना है। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट फॉर अबाउट 500 वर्ड्स एंड दिस इज ऑफ 20 मार्क्स। 20 मार्क्स के लिए यू हैव टू राइट अराउंड 4 to 5 पेजेस। नाउ लेट्स कम टू द आंसर। इसमें आपको फोकस ऑन इंस्टीट्यूशंस, दैट इज शिफ्ट फ्रॉम बिहेवियरिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर्स, ये सारे सब हेडिंग्स हैं जिनके अंदर आपको पॉइंट्स लिखने हैं। दिस इज द फर्दर आंसर। बियॉन्ड केस स्टडीज, focus on development and inequality, beyond democracy, interdisciplinary approaches, rise of new actors. So you can take screenshot or write down your answer by pausing the video. Coming to the second question, the existence of efficient and vigorous civil society is both a precondition for and maker of healthy democracy. ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो एग्जिस्टेंस होती है हमारी, जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी है, वो कैसे बनती है। कि एक एफिशिएंट और मतलब बहुत ही समझदार और जो विगरस सिविल सोसाइटी होती है, सिविलाइज लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में, वही एक डेमोक्रेसी को हेल्दी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करते हैं। So you have to write about precondition for democracy, foundation for civic engagement, promoting democratic values, maker of healthy democracy, holding government accountable, representing diverse interests, building social capital, and then you have to write conclusion. Coming to third question, describe the essential features of military regime. इस question में आपको main features बताने हैं military regime के, and this question is of 10 marks, so around 2.5 pages enough. Military regimes, also known as military dictatorships, hold supreme power. उसके कुछ essential features हैं जैसे कि seizure of power, military rule, suppression of civil liberties, authoritarian rule, use of force, economic control, lack of legitimacy. उसके बाद आता है हमारा fourth question, describe the features of parliamentary system of government. इसमें कुछ की फीचर्स जानेंगे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के, दैट आर फ्यूजन ऑफ पावर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, रोल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एंड देन सम एग्जांपल्स of countries that follow parliamentary system, that is United Kingdom, Canada, India and Australia. Question number 5, examine the strength and weakness of plurality and majority based electoral system. You have to write about plurality system, that says first past the post, then उसकी strength weakness के बारे में लिखना है। broad support, reduces strategic voting, encourages multiple parties, legitimacy, ये सब उसकी strength हो गई। और अगर weakness की बात करें तो costly होता है काफ़ी और time consuming, potential for polarization, complex होता है ये system बहुत ज़्यादा। Then if we see question 6, in what way does the international organization affect the sovereignty? अब जो भी international organizations होती हैं तो वो एक country की sovereignty को कैसे affect करती हैं, हमें इसके बारे में लिखना है इस question में। So let's see constraints.
देन इरोजन, उसके बाद एनहांस कैसे करती हैं। वो ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ नेगेटिवली इफेक्ट करें, दे कैन ऑल्सो इम्पैक्ट पॉजिटिवली बाय एनहांसिंग दिस सॉवरेनिटी। वो अपना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सो दे आर एट बिगर लेवल। अगर वो हमें, दे ऑल्सो प्रोवाइड अस अ प्लेटफॉर्म टू कीप अ वॉइस सो दैट द वर्ल्ड कैन हियर अस। Then we have seventh question. Examine the role of pressure groups in democracy polity. अब कुछ pressure groups होते हैं, उनका क्या रोल होता है करंट गवर्निंग पार्टी के ऊपर, या फिर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर भी। एक टाइप से देखा जाए तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, दे आर काइंड ऑफ क्रिटिक, जो मतलब अकाउंटेंसी, दे होल्ड फॉर अकाउंटेंसी ऑफ द करंट गवर्नमेंट, दे आस्क देम क्वेश्चंस, उन पे दबाव बनाते हैं ताकि वो काम करें और एंड सर्व द कंट्री। उनको उनके किए गए वादे याद दिलाते हैं जो वो भूल चुके होते हैं इलेक्शन जीतने के बाद। Representing diverse interest, promoting civic engagement, holding government accountable, like I said, influencing policy making, जो पॉलिसी बनी होती है अगर लोगों को पसंद ना आए तो उसको कैसे सरकार पे प्रेशर डालना है उसे बंद करने के लिए, या फिर कोई नई पॉलिसी बनाने के लिए कैसे प्रेशर डालना है। सो दिस इज व्हाट ऑल दे डू। And these are key points, that is pluralism and balance of power, transparency and accountability. Then we have eighth question, describe the neo-Marxist approach to state. So कार्ल मार्क्स के बारे में we all know, neo-Marxist, उनके अकॉर्डिंग जो स्टेट है बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है एंड सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास, क्लास पे ज़्यादा फोकस रहता है उनका। देन हेजेमनी, रिलेटिव ऑटोनॉमी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीकल्चरलिज्म। As we live in India, we are very फेवरेबल विद मल्टीकल्चरलिज्म, एज इंडिया के अंदर खुद इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे लोग हैं डिफरेंट रिलीजन के, कास्ट के, क्रीड के। सो मल्टीकल्चरलिज्म इस जब एक जगह पे, एक सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटीज़, एंड दे आर लिविंग ऑल टुगेदर विदाउट बीइंग डोमिनेंट, और मतलब सब अच्छे से रह रहे हैं एक सोसाइटी में, दैट्स व्हाट वी कॉल एज मल्टीकल्चरलिज्म। और मल्टीकल्चरलिज्म को हम एक पॉजिटिव फोर्स भी देख सकते हैं जो कि हमारी सोसाइटी को प्रमोट करता है फॉर लिविंग पीसफुली इन हार्मनी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ एन अथॉरिटेरियन रिजीम। अब एक अथॉरिटेरियन रिजीम होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। लिमिटेड पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, सेंट्रलाइज कंट्रोल, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, suppression of civil liberties, use of coercion, limited political participation, weak rule of law, authoritarian regimes. Okay, so that's it for the video. I hope you liked it. Thank you so much for watching. And so if you use these answers, I'm very sure that examiner will give you really good marks. And if you want any other subject that I should provide you with the solved assignment, so please comment below the video about your subject code. I'll help you with it in the next video. Thank you.